जोर से रे हमारे लोग को इनकलाब जिंदाबाद बम कांग्रेस जोर जिंदाबाद बम कांग्रेस जोर जिंदाबाद আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে ভোট দেন ভোট আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে ভোট দেন ভোট হাত মার্কা চিহ্নে ভোট দেন ভোট ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত ইনকলাব জিন্দাবাদ ওই সাধারণত গরিব মানুষকে রেশন করার জবাব চাই, জবাব দাও। এই বাগানের মানুষদের সাথে লিঞ্চন করা হচ্ছে কেন মমতা সরকার, জবাব চাই, জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ করা হচ্ছে কেন মমতা, জবাব চাই, জবাব দাও। এই সাধারণত গ্রামের বাগানের মজদুরদেরকে 450 টাকা মজদুরি প্রদান করতে হবে। বাগানের মজদুরদেরকে 450 টাকা মজদুরি প্রদান করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ সিপিআইএম জিন্দাবাদ সিপিআইএম জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে এই কাজের মানুষ শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ শঙ্কর মালাকার জিতছে, জিতবে। এইসব মাহমুদা তুমি জেনে রাখো, শঙ্কর মালাকার জিতছে, জিতবে। এই কাজের মানুষ শঙ্কর মালাকার জিন্দাবাদ এই কাজের মানুষ শঙ্কর মালাকার জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ চিহ্নে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে এই 17 এপ্রিল শঙ্কর কাজের মানুষ শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ বাম কংগ্রেস জোট জিন্দাবাদ নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শঙ্কর মালাকারকে হাত মার্কা চিহ্নে कांग्रेस सीपीएम दोनों केंद्रीय ये हम लोगों के बीच अभी आए, इनको पहचानते हैं ना, हम लोगों के एमएलए हैं शंकर मालाकर, यही खड़े हैं और इनको कांग्रेस हाथ चिन्ह पे बटन दबाना है। 70 চাল দেয়, 35 কেজি চাল দেওয়ার কথা রেশন দেয় না। আমরা শুনেছি অনেক রেশন কার্ড তিনি রেখে দিয়েছেন, অনেকের রেশন কার্ড নেই। আপনাদের রেশন কার্ড এখানে রেশন ডিলারের কাছে আছে, তাই সেটা কে বলবে? আসলে যিনি রেশন ডিলার তিনি হলেন তৃণমূলের নেতা, যার ফলে তৃণমূলকে সামনে রেখে আপনাদের রেশনগুলো মেয়ে দিচ্ছে। 2 নম্বর যেটা হচ্ছে, বললেন না ভবনদা যে এখানটা আপনাদের যে বাগান, আপনাদের হচ্ছে একবার মা তাই তো, বাগান হচ্ছে আপনার মা, সেই বাগানটাকে আপনার ফ্ল্যাট করছে, বড় লোকরা আসবে, ব্যবসা করবে, চলে যাবে, আর আপনাদের ছেলে পেলে চাকরি কোথায় হবে? ছেলে যিনি মানে যিনি ফ্ল্যাট করছেন, যিনি যে টি ট্যুরিজম করছেন, টি ট্যুরিজম কিন্তু টি কোনো ব্যাপার নেই। তিনি জানেন কে? তিনি একদম সোনার বাংলা করবে, যে সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলা করার লোক। আপনাদেরকে শোষণ করবে, আপনাদেরকে চুষে খাবে, আর সোনার বাংলা হবে কাদের? এই সমস্ত মানুষের সোনার বাংলা হবে। আপনার ছেলে মেয়ে বেরোজগার, আপনার রেশনের চাল নাই, আপনার হাজিরা নাই, মিনিমাম ওয়েজ যেটা সেই মিনিমাম ওয়েজ নাই, এইসব দেখবে কারা?
তার জন্যই একটা বাম কংগ্রেস জোট সরকার হবে। अभी आप लोगों का सामने में वक्तव्य रखें। नमस्कार। के सभापति महोदय, हमारे मित्रों, महकुमा परिषद के भूतपूर्व सभाधिपति तापस सरकार, हमारा ब्लॉक कांग्रेस के सभापति विप्लव दत्त, हमारे इस बागान के पुराना मित्रों रामचंद्र, हमारे सेक्रेटरी नाम की रघु मुरुल, हमारे महिला कांग्रेस के रेशमा, प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी सुब्रत और इस बागान के माँ बहनों, दोस्तों, साथियों, आप लोगों से यही विनती करने के लिए आया हूँ कि हमारा देश एक संकट में है। अच्छा दिन का वादा करके, महंगाई कमाने का बात करके, गरीब को नौकरी देगा बात करके बीजेपी सरकार सत्ता में आया। लेकिन आज अच्छा दिन तो आया नहीं। 900 रुपया गैस का दाम हो गया, बेरोजगार हो गया 14 करोड़ लोग। लॉकडाउन और कोरोना का कारण से आज बहुत सारे मजदूर भाई, खटने वाला लोग बेरोजगारी हो गया। लेकिन हमारे केंद्रीय सरकार चाय बागान के मिनिमम वेजेस बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर जहां बोलने के लिए आप लोग एमएलए चुनते हैं और एमपी चुनते हैं, मैं विधानसभा में 5 साल लड़ाई किया कि बागान का मजदूर को 450 रुपया मिनिमम वेजेस होना चाहिए। लेकिन तृणमूल का सरकार झूठ मूठ का आश्वासन तो देता है। आज ये महंगाई का ज़माना में 220 रुपया से क्या होता है? ना इलाज मिलता है, ना शिक्षा मिलता है। बागान मालिक श्रमिकों का खून चूसता है। लेकिन पश्चिम बंगाल का सरकार और हमारा बीजेपी का सरकार दोनों सरकारी कानून को बदली नहीं किया। आप लोग का जो बागान का नेता है रघु, रामचंद्र, इन लोगों को मालूम है कि ये दोनों ही सरकार कानून नहीं लागू होने दिया। आज कितना बागान बंद हो चुके हैं। ना ममता बनर्जी कुछ कर रही है, ना मोदी कुछ कर रही है। बागान का मजदूर 20 साल पहले भी जो परिस्थिति में था, आज भी वही परिस्थिति में है। उसका प्रोविडेंट फंड का रुपया काट लेता है, लेकिन ठीक ठाक जमा नहीं होता है। उसका परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल नहीं होता है, अस्पताल होता है तो दवाई नहीं होता है। जो सामान मिलना चाहिए चाय बागान का श्रमिकों को, ये दोनों सरकार नहीं देता है। इसीलिए ये दोनों सरकार चुनाव का पहले कुछ सुविधा लेकर के, कुछ पैसा लेकर के मजदूर को खरीदना चाहेगा। लेकिन हमारे माँ बहनों, आप थोड़ा अंतर मिला लीजिए। कांग्रेस का टाइम गैस का दाम 320 रुपया था, चावल का दाम 25 रुपया था। लेकिन आज महंगाई इतना बढ़ गया, मालिक ना आपका मजूरी हाजिरा बढ़ाता है, ना आपका बेनिफिट बढ़ाते हैं। इसीलिए ये सरकार का खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है और इसका खिलाफ वोट डालना है। आप लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट दिया। इसके पहले 5 साल पहले जब मैं खड़ा हुआ
उस समय भी आपने कांग्रेस को ही वोट दिया, तो कांग्रेस का समय सामान का दाम क्या था और आज सामान का दाम क्या है, महंगाई कितना बढ़ गया, लेकिन रोजगार किसी को नहीं बढ़ा। आपका घर का लड़का लड़की को नौकरी ना बागान में मिलता है ना बागान का बाहर में मिलता है, लेकिन चुनाव का टाइम सभी लोग आकर के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों को होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का हक लेकर के जैसे बागान मालिक का साथ आपका बागान का नेता लोग लड़ाई करता है, ठीक उसी तरह जो एमएलए बनता है उसका जिम्मेदारी होता है विधानसभा का अंदर में आपके लिए लड़ना। आपको ये समझना पड़ेगा आप वोट क्यों देते हैं। जैसे आप हमको वोट दिया, हमको जिताया, हमारा काम है आपका बातों को, आपका अधिकार को विधानसभा का भीतर में, पार्लियामेंट का भीतर में कानून बनाना। कानून बनाने के लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए और वो मेजॉरिटी आपको इस बार देना पड़ेगा, क्योंकि हमने 10 साल तृणमूल का नेता को देखा है, 10 साल ममता बनर्जी को देखा है, 7 साल बीजेपी को देखा है। इन दोनों ने कुछ नहीं किया। इन दोनों ने देश के लोगों को बेरोजगारी बना दिया, देश को बिक्री कर दिया, देश का जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी सब बेच डाला है। आज आपका घर का लड़का लड़की आपको पढ़ाई करके लिखाई करके सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। आप देखा है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ से बीजेपी को भगा दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बना, झारखंड में बीजेपी का सरकार था, झारखंड से बीजेपी को भगाया। वहाँ पर आपको कांग्रेस और नहीं वो शिव सोरेन और कांग्रेस मिलकर के आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलके सरकार बनाया। कहाँ पर? झारखंड में। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग का साथी रहना है, आप लोग का साथी मरना है और आप लोग का हक दिला के ही हम मरेंगे। हमको जानता है रोगू, हमको जानता है रामचंद्र, आप लोग भी हमको जानता है। हम 45 साल से गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आए हूँ। विधायक बना 10 साल हुआ, लेकिन गरीब के लिए मैं 45 साल से लड़ाई लड़ते आया हूँ। इसीलिए माँ बहनों से, हमारे दोस्तों से, सभी से मेरा विनती है कि एक भी वोट आप नष्ट मत कीजिए। आप ये नहीं समझना कि आपका वोट का कीमत कम है। आपका वोट का कीमत भी एक है, प्रधानमंत्री का वोट का कीमत भी एक है, राष्ट्रपति का वोट का कीमत भी एक है, ममता बनर्जी का वोट का कीमत भी एक है। आपका एक रिक्शा वाला का, हमारा सबका वोट का मूल्य एक होता है। ये मत समझना कि आप बागान में काम करते इसलिए आपका वोट का वैल्यू कम है। आपका ये वोट से एक सरकार बनता है, आपका वोट से सरकार गिरता है, तैयार होता है। इसीलिए सभी माँ बहन से मैं यही विनती करने के लिए आया हूँ कि हाथ चिन्ह में कांग्रेस में आप लोग वोट दे करके हमको जिताएंगे और मैं आपका अधिकार को लेके विधानसभा में, पार्लियामेंट में हम लड़ाई लाएंगे। और इस बार हाजिरा मिनिमम वेजेस 400 रुपये के नीचे हम लोग मानेगा नहीं। हम लोग सरकार को बाध्य करेगा कि गरीब मजदूर को 420 रुपया करके हाजिरा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चा मजदूर हमारे NAPW जिंदाबाद।